نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں اپنی پچھلی تقریر میں یہ بتا چکا ہوں کہ نبی بنیادی طور پر ہمارے پاس رب نے بھیجا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے. کیونکہ آدمی کو یقین کے دو طریقے، آپ کو وشواس ہو جائے، آپ یقین کریں تو یہ رستہ ہے. ایک تو یہ اکھیا سے دیکھ لیں، کان سے سنیں گے. کچھ بے وقوف لوگ اس پہ بھی یقین کرتے ہیں. ایسا کاہے بولا تھے؟ ہم سنے ہیں. تو جو سن لوگے وہ صحیح ہے کہا. نہ کان کی سنی بات صحیح ہونا ضروری نہیں. اکھیا سے دیکھ لو یا جانچ پڑتال کر لو، پھر الزام لگاؤ. یہ تو قرآن کی تعلیم ہے کہ جب تمہارے پاس کونوں خبر ہوئے تو تحقیق کریو. ایسا نہ ہوئے کہ تمہیں منہ سے نکل جائے اور بعد میں پچھتاتے رہو. اگر مسلمان یہ طے کر لے کہ ہم سنی بات نہیں منوے، 80% تو جھگڑا ختم ہوئے گا. اس کا مطلب ہے جھگڑالو ہونے کے لیے سننا بہت ضروری ہے. ہم بھی سنتے رہتے ہیں. انڈیا میں کبھی ہندوؤں کی آواز سنتے ہیں، شیعوں کی آواز سنتے ہیں. اب سنتے ہیں، سننا ہے تو سنیں گے. مانتے نہیں جب تک تحقیق نہ ہو جائے. اچھا چلو ہم آگے کہتے ہیں کلید کا اعلان کرو. کاہے جان بھوا؟ ہاں بھوا. تمہیں کیسے معلوم؟ ہم سنیں. کرو اعلان، منواؤ عید، ہم سنیں. روٹاٹا میں عید کرو. کاہے کری؟ ہم سنیں. چندوا دیکھے ہو؟ نہیں دیکھتے ہیں، سنیں. کرو گے روزہ رکھو گے سن کے، عید کرو گے سن کے. ہمیں جب بندگی میں سننے کی ویلو نہیں تو زندگی میں کون ویلو؟ کہتے ہیں نا دیکھنے والا لاؤ، دیکھنے والا لاؤ تب منوائے. جب دوئی دیکھنے والے آتے ہیں تب اعلان کیا جاتا ہے. اب ماننا ہے اللہ کو، ماننا ہے قبر کے اندر کے سوال کو، ماننا ہے محشر کے حساب کتاب کو، ماننا ہے جنت اور دوزخ کے وجود کو. وہ تو سنائی ہو نہیں پڑتا. دکھائی تو بڑی بات. تب اللہ نے نبی بھیجا. کیونکہ اب ماننے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ دکھائی پڑے نہ دکھائی پڑے، سنائی پڑے نہ سنائی پڑے، مگر کہے والا سچا ہو. سبحان اللہ. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو پکا یقین ہے کہ وہ اکرے ابا کے ہیں.
हमें पक्का यकीन है कि मुहद्दिस आज़म हमारे बाप, नूरानी मियाँ को भी पूरा यकीन है कि हाशमी उसका बाप है। आपको भी तो यकीन होगा अपने बाप पे। तू अब्बा बने तू देखे हो। कोई देखे हो बताओ। अम्मा अम्मा बनती है ये हॉस्पिटल में एक को दिखाई जो देता है, अब्बा अब्बा बनते हैं ये किसी को नहीं दिखाई देता। फिर इतना पक्का यकीन कैसे? अम्मा पे भरोसा करके यकीन किया। तो माँ पर जिस बच्चे को भरोसा होगा वो माँ के कहे हुए को बाप मानेगा। तो मेरे नबी पर जिसको भरोसा होगा उसके कहे से वो खुदा को उसके हर कहे पर उसे भरोसा होगा। उसे कहा या नबी आबादी, हमरे बाद कोई नबी नहीं, तो बना करें लोग, कहा करें लोग, हमें नबी पे भरोसा है। तो जिस तरह माँ पर भरोसा बाप तक ले जाता है, उसी तरह नबी पे भरोसा खुदा तक ले जाता है। और वही कहीं की कब्र में 3 सवाल, और वही हम लोग को जाना है। रोटरडम में रहते हैं, जनाब में रहते हैं हम लोग, घरों में रहते हैं, लेकिन जाना तो खबर ही में। और हुजूर ने क्या कहा? खबर में 3 सवाल होंगे। पहला सवाल मन रब्बो का, दूसरा सवाल माँ दीनों का, तीसरा सवाल माँ कुंता तकूलो फी हाज़िर रजुल। पहला सवाल होगा तुम्हारा रब की है, दूसरा सवाल हुई है तुम्हारा दीन क्या है, और तीसरा सवाल है कि तीन मर्द के बारे में तुम क्या कहा करते थे, क्या कहा करते थे, क्या कहा करते थे। ही 3 सवाल हुई। और ये 3 सवाल को कौनो सुपर पावर कंट्री सुन नहीं सकती। हम जैसे गरीब आदमी कैसे सुनेंगे? बड़े बड़ा साइंटिस्ट भी जब सवालवा होए में कैमरा डाला जाए, अब ये बाहर ना आई, तो न सुनवाए न देखवाए। मान लिया हमने 3 सवाल होगा, खाली नबी पे भरोसा। यही भरोसा टूटेगा तब इस्लाम टूटेगा तेरे अंदर। भरोसा जितना मजबूत, ताल्लुक उतना ही मजबूत। एक बात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से जा रहे थे, एक जगह रुक गए, देखी तो वहां तो अरब में ये बबूल के पेड़ होते थे, बहुत देर तक नरम रहा है, बहुत देर तक हरियाली रहा थी उनमें। एक नरम शाख ब्रांच तोड़ के सरकारों के 2 टुकड़े दिए, और एक कब्र पे गाड़ दिया और दूसरा टुकड़ा दूसरी कब्र, और चल दी वहां से। अल्लाह साहबे किराम की कब्रों में रहमतों को की बारिश करे। हमें चुप रहते तो पता ही नहीं चलते सरकार ने क्यों किया। उसी में एक साहबी ने बोला या रसूलल्लाह मामला क्या है? आपने शाख तोड़ी, वो 2 टुकड़े किए, एक ही कब्र पे डाल दिया, एक दूसरी कब्र पे डाल दिया। तो हुजूर ने फरमाया कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तो इन 2 कब्रों में मैंने देखा अजाब हो रहा है, सजा मिल रही है। अब कौन बात से? बहुत छोटी बात, ये चाहते तो बच जाते, कोशिश नहीं की बचने की, चाहते तो बात मामूली थी। ये कब्र वाला जब पेशाब करता था तो पेशाब के छींटा से बचता नहीं था, एहतियात नहीं करता था।
गड़े गड़े, पड़े पड़े, खड़े खड़े, बेड़े बेड़े, बचता नहीं था, सेफ्टी नहीं थी, प्रोटेक्शन नहीं था, ध्यान नहीं था, छींटा पड़ता था उसका आसार। और दूसरी कबर में जब लेटा ये चुगली खाता था, एहर की बोहर लगा, बोहर की एहर। एक मस्जिद के इमाम की बात दूसरी मस्जिद के इमाम से आपका सब ऐसा कहा था, ऐसा कहा अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, हमें नहीं कि इधर से वहां उधर आपको ऐसा कहा, रोटरडम के इमाम सब ऐसा कहा, डेन हाग को आग लग गई, डेन हाग के इमाम में एम्स्टर्डम में आग लग गई, चुगली खा उसका आजाब। चुगली ना खाओ भाई, अगर बड़ा शौक है तुम्हें हलवा का खाएगा, हवा खाओ, और उस लायक रहो तो जूता खाओ, चुगली ना खाओ। सच्ची बात पे कसम खाओ, या जो अल्लाह ने हलाल किया है वो खाओ, चुगली ना खाओ। बोला गोश्त रोटी चावल हलाल है, वो का ज्यादा खा ली तो पेट खराब हो जाता है, और चुगली दिन रात खाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब नहीं होता, मेदा में हजम। चुगली खाता, इधर उधर की लड़ाता, और ये आज भी हमारी सोसाइटी में चुगलखोर है। भाई भाई को लड़ा देते हैं, बाप बेटे को लड़ा देते हैं, दो आलिम दीन को लड़ा देते हैं, दो इमामों को लड़ा देते हैं, दो मस्जिदों को लड़ा देते हैं, दो सेंटर को लड़ा देते हैं, दो जमात को लड़ा देते हैं, और दो भाइयों को लड़ा देते हैं। ये चुगलखोर, इनका चिन्हित करो, इन्हें फिक्स करो, इन्हें पहचान लो, इनसे बचो। तो फिर ये जो आप गाड़े हो का मतलब कहीं सुनाओ, ये जितनी दुनिया में पत्तियां हैं, फूल हैं, पौधे हैं, झाड़ है, पेड़ है, जब तक ये हरे हैं अल्लाह का जिक्र तस्बीह करते हैं, अल्लाह की बाकी बयान करते हैं, तब तो जब तक कबरिया पर ये तस्बीह करेंगे, बाकी बयान करेंगे, तो इससे उसके अजाब में कमी होगी, बरकत से। तो हम सोचा गुनहगार है तो कर गुनाह सजा हो रही, अजाब हो रहा, तो अजाब कब होगा? और परहेजगार लेटा है और हरी पत्ती डाल दिया तो दर्जा बुलंद होगा, तो का दर्जा बुलंद होगा। तो तुम गुनहगार पर भी फूल चाहो, परहेजगार पे भी चाहो, गुनहगार का अजाब खत्म होगा, परहेजगार का दर्जा बुलंद होगा। अब यहाँ जो सोचने की बात है, हदीस मुकम्मल हो गई कि हुजूर कब्रिस्तान से जा रहे थे, दो कब्रों पे अजाब हो रहा था, उन्होंने दो शाखें गाड़ दी और फिर फरमाया कि एक चुगली खाता था, एक पेशाब से नहीं बचता था, अजाब हो रहा था, तखफीफ अजाब, अजाब में कमी हो जाएगी जब ये जिक्र तस्बीह करेंगे। बात मुकम्मल हो गई मिशकात शरीफ। मगर मैं सोचने लगा कि बड़े से बड़ा साइंटिस्ट खड़ा होकर कब्र का अजाब नहीं देख सकता, क्योंकि कब्र का अजाब गैब है, नबी ने गैब देखा। अब भी गैब नहीं मानोगे? तो चलो, हाजीपुर साहब चौंकाने वाली है वो ये कि अजाब हो रहा है, वही देखना नामुमकिन था, मगर चलो हो रहा है, ये तो देख लिया, मगर किस वजह से हो रहा है वो वजह तो जिंदगी में थी। अरे जब जिंदा था तब पेशाब से नहीं बचता था, जब जिंदा था तब चुगली खाता था। कब्र में अजाब तो प्रेजेंट है, मगर एक वजह पास्ट है। नबी प्रेजेंट भी जानता है, पास्ट भी जानता है, और फ्यूचर भी, कि अगर हरियाली रहती जाए तो फ्यूचर में अजाब कम हो जाएगा।
छोटे गुनाह नहीं छुपे तो इनके मोटे मोटे गुनाह कैसे छुपाएंगे? एक बात हो, जब मेरे नबी की आंख से छुपे गुनाह नहीं छुपते, छुपे हुए गुनाह नहीं छुपे, तो तेरे छपे हुए गुनाह प्रेस में छपे हुए गुनाह कैसे छुपाएंगे? अब नाउ यू कैन सब्जेक्ट तवज्जो चाहिए हमें आपकी तीनों सवाल। पहला सवाल है मन रखूंगा, दूसरा सवाल है मादीनों का, और हुजूर ने दुई बात का सवालों बताया और जवाब। पहला सवाल होगा मन रखूंगा, मोमिन जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मादीनों का मोमिन जवाब देगा दीन इस्लाम, जवाब भी बताया। यहाँ पूरे यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, पांचों कॉन्टिनेंट में इम्तिहान होता ना, एग्जाम होता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तब पता चलता है सवाल क्या है। पूरी दुनिया में स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा तब उसका पता लगेगा फिजिक्स में क्या सवाल है, केमिस्ट्री में क्या सवाल है, जोलॉजी का क्या सवाल है, बॉटनी में क्या सवाल है, मैथमेटिक्स में क्या सवाल है, अलजेब्रा में क्या सवाल है, ज्योमेट्री में क्या सवाल है, स्टैटिक्स में क्या सवाल है, कॉमर्स में क्या सवाल है, बैंकिंग में क्या सवाल है। जाएगा, पढ़ेगा, तब जवाब देगा। अगर 25 दिन पहले मिल जाए पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, चेंज करो दूसरा। कोई गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी कि स्टूडेंट का इम्तिहान होए और 20-25 दिन, एक महीना पहले पेपर उनके हाथ में। ये हमारा सिस्टम कि जब तक हॉल में न जाएगा उसको पेपर नहीं मिलेगा। और ये मेरे नबी का करम है कि 1400 बरस पहले पेपर आउट कर दिया। 1400 साल पहले मेरे नबी ने पेपर आउट कर दिया। पहला सवाल मन रब्बो का है, दूसरा सवाल मदीनों का, तीसरा सवाल पहले सवाल का सही जवाब है रब्बी अल्लाह, दूसरे सवाल का सही जवाब है दीन इस्लाम। पेपर भी आउट किया, जवाब भी आउट किया, अब भी फेल हो जाओ तो कितने कंडम स्टूडेंट हो। अब आइए आपकी तवज्जो। पहले सवाल में पूछा गया रब के बारे में, और दूसरे सवाल में दीन के बारे में, और तीसरे में नबी के बारे में। ये तरतीब ऐसे का है, पहले अल्लाह, फिर दीन, फिर नबी। मन रब्बो का में पहले रब, माँ दीनों का में होगा दूसरे पे दीन, और माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, नबी के बारे में तीसरा सवाल। पहले अल्लाह तो समझ में आया, सबसे बड़ा है वही बारे में पहले पूछो, मगर अल्लाह के बाद दर्जा रसूल का है, ये बीच में दीन कहाँ से आवा? ये तरतीब का है, अल्लाह पहले, दीन बाद में, नबी हो के बाद। ये पर क्या असल में ये दुनिया में भांत भांत के लोग, किस्म किस्म के हैं, रकम रकम के हैं, मेनी काइंड्स। अब एक चादर के नीचे एक आदमी का हम छुपाएंगे, आप लोगों को बुलावा, बताओ ये चदरिया के अंदर जो है कौन है? का बताइए, पता नहीं ये आस्तिक है कि नास्तिक है, मुल्हिद है कि जिंदीक है कि बेदीन है, मुनकिर खुदा है, अल्लाह को मानता भी एक नहीं मानता। हाँ, ऐसा लोग हैं। तो पूछ ले मन रब होगा, तेरा रब कौन है? अगर वो जवाब दे मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब खुदा को मानता है, खुदा को मानता है, मार्क्सिस्ट नहीं है, खुदा को मानता है, नेचरी नहीं है, खुदा को मानता है, मुनकिर खुदा नहीं है। मगर फिर शुबहा पैदा हो गया, यार खुदा तो हर रिलीजियन में है,
किस दीन की बुनियाद पर, कौन धर्म की बुनियाद पे खुदा को मानता है? यहूदी की बुनियाद पर मानता है कि नसरानी की बुनियाद पे मानता है कि हिंदुइज्म की बुनियाद पे मानता है, गौतम बुद्ध की बुनियाद पर मानता है या गुरु नानक की बुनियाद पे मानता है? खुदा को मानने वाले तो हर धर्म में है, किस बुनियाद पे? तो पूछ ले मादीनों का। क्या कहने सुभान अल्लाह, वाह वाह, तेरा दीन क्या है? उसका दीन इस्लाम। ओ हिंदू नहीं है, नसरानी ना हो, ये मिर्जाई दीन है, ये तो मुसलमान है, ये सिख नहीं है, ये सनातन भी नहीं होए और समाज आर्या भी नहीं, ना आर्या ना जारिया, तो मुसलमान है। लेकिन यार फिर सुबह पैदा हो गया, मुसलमान में तो बहुत फिरका है, बहुत ग्रुप है, ये कौन ग्रुप का है? तो पूछ रहे मां कुंता तकुलो, बता नबी को क्या कहा करता था? क्या कहा करता था? अकीदा नहीं हो जाए। बात यह है कि खुदा को मानना तेरा दावा है, इस्लाम को दीन मानना तेरा दावा है, तेरा नबी इन दोनों दावे की दलील है। कब्र में यह तय किया गया कि तूने खुदा को किसकी बुनियाद पर माना, दीन को किसकी बुनियाद पर माना, वो है रसूल। अब यहाँ उलमा की तवज्जो, पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहूंगा। मा तक़ूलु फी हाज़ा रजुल सवाल में नहीं है, मा तक़ूल नहीं है, मा कुंता तक़ूल, इस्तिमरार का माना पैदा हुआ, क्या कहा करते थे। सिर्फ नबी को पहचानने का मसला यहाँ नहीं है, तेरी आदत पूछी जा रही है, क्या कहा करते थे? तो मुर्शिद ने सिखा दिया, आदत बना दिया, या नबी कहा करते थे, या रसूल कहा करते थे, या हबीब कहा करते थे। इन्हें बताना पड़ेगा कि ये क्या कहा करते। फिर यहाँ एक सवाल है, जब रब के बारे में सवाल हुआ तो क्वेश्चन में लफ्ज रब है, मन रब्बो का, और जब दीन के बारे में पूछा गया तो क्वेश्चन में दीन है, मां दीनों का, और जब नबी के बारे में पूछा गया तो क्वेश्चन में नबी नहीं है। क्या कहने सुभान अल्लाह, मां कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, रजुल है नबी नहीं, मर्द है नबी नहीं। ये नबी को मर्द क्यों कहा, इस्लाम को दीन कहा, खुदा को रब कहा, रसूल को नबी क्यों नहीं कहा, मर्द क्यों कहा? क्या कहने सुभान अल्लाह, ये मर्द है, मर्द जो वाकई मानो इस्लाम में मर्द होगा वही इस मर्द को पहचानेगा, ना मर्दों को जो तीनों इस्लाम में मर्द होगा, मर्द होगा वही पहचानेगा, जो नहीं पहचान सका वो मर्दों में नहीं, और जो मर्दों में नहीं होता वो फिर क्या होता है, वहां पूछो जहां ये हादसा हो। अब मैं आपको वजह बताऊं नबी क्यों नहीं था। बहुत अच्छा किया जो नबी नहीं है। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा नबी, अच्छा हुआ जो है लफ्ज़ नबी नहीं है, वरना लोग ये बहस करते मर्द होता ही नहीं बगैर जिस्म के। अगर कोई के पास ऐसा मर्द हो, क्योंकि पास शरीर ना हो मर्द हो, बॉडी ना हो मर्द हो, है मुमकिन? है संभव? ये हो सके ना हो सके। बगैर जिस्म के मर्द नहीं होता। कान खोल कर सुन लो, मगर मेरा नबी बगैर जिस्म के नबी रहा। मेरा नबी बगैर जिस्म के, बगैर बॉडी
नबी रहा, मैं रहा कह रहा हूं, है नहीं कह रहा हूं। कुन तो नबी हूं आदम बैनल माए वस्तीन, मैं तो उस वक्त नबी था जब आदम मट्टी और पानी के बीच में थे, ड्यूरिंग वाटर एंड सोयल, बिटवीन वाटर एंड सोयल, तब मैं नबी था, आदम से पहले। ठीक है, जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, या मिट्टी और पानी के दरमियान थे, नॉट कंप्लीटेड, पूर्ण रचना नहीं भई रही, उनकर बानी पूरी नहीं बनी रही मुकम्मल। हुजूर फरमाते मैं उससे पहले नबी था, तो आदम से पहले नबी। एक बाजू रख के अब दूसरी बात सुनो। दूसरी बात क्या? दुनिया का पहला आदमी क्या है? आदम अलैहिस्सलाम, पहला इंसान आदम, पहला बशर। इसीलिए हजरत आदम को अबुल बशर कहा थे, क्योंकि आदम से पहले कोई बशर नहीं, आदम से पहले कोई आदमी, आदम से पहले कोई इंसान, आदम से पहले कोई मर्द, आदम से पहले कोई औरत नहीं ना। हुजूर कहा था मैं आदम से पहले नबी, तो जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले वो बशरियत से पहले, और जो बशरियत से पहले होगा बशर कैसे होगा? जो आदमियत से पहले होगा आदमी कैसे होगा? जो इंसानियत से पहले होगा वो इंसान कैसे होगा? तो मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है, नबी रह चुका है। अब बतिया क्लियर हो गई कि नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं। तवज्जो चाहूंगा, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलान नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। ऐलान नबूवत के लिए तुम्हें बशर नहीं बनाया जाएगा आदम से पहले, लेकिन जब मक्के में 12 नबी अव्वल को लोगों में भेजा जाएगा तो बशर बना के भेजा जाएगा। बशर की इस्लाह करनी है तो बशर के लिबास में जाओ, बशर को रास्ता दिखाना है तो बशर के यूनिफॉर्म में जाओ, आदमी को राह दिखानी है तो आदमी के लिबास में जाओ। ये रसूल तुम जब चलोगे ना तब मेरे बंदों को चलना है, खाओ मेरे बंदों को खाना आ जाए, तुम पियो मेरे बंदों को पीना आ जाए, तुम शादी करो मेरे बंदों को शादी करना आ जाए, तुम सच्ची सच्ची बात सुनाओ मेरे बंदों को सच बोलना आ जाए। ए रसूल तुम इबादत करो मेरे बंदों को इबादत करना आ जाए। ए रसूल तुम बिजनेस करो ताकि मेरे बंदों को बिजनेस करना आ जाए, और औलाद की परवरिश करो ताकि औलाद की परवरिश करना आ जाए। और ये जो मस्जिद में बुत रखे हुए इन्हें बाहर निकालो ताकि मस्जिदों से बुत निकालना आ जाए, मेरे बंदों को बुत निकालना आ जाए। और जब इस्लाम खतरे में आए तो करबला में अपने पूरे परिवार को कटवा दो ताकि मेरे बंदों को कुर्बानी देना आ जाए, मेरे बंदों को ईसार करना आ जाए। तो ये नबी आप बशर हैं तो हिदायत के लिए हैं, और हम बशर हैं अपनी जरूरत के लिए। तो अब अगर मेरे नबी ने कहा और फरिश्ते ने पूछा होता मैं कुंता तक़ूलु फी हाज़ा नबी, तो सारे मौलाना लोग जमा हो जाते कहते सुनो नबी के लिए जिस्म जरूरी नहीं, आदम से पहले रह चुके हैं बगैर जिस्म के, तो हई शकत से बगैर जिस्म के ही है, खाली रूह आई हुई है, बॉडी ना हुए, उसरगार वहीं हुए, कुछ और आ गया। ज़ाते पाके मुस्तफ़ा कब्र में नहीं आती बल्कि बगैर जिस्म के वो रह चुके हैं। तो फरिश्ता जानता था बेईमानों की होने वाली बेईमानी, कहा हम तोहरी जड़िया ही काट के हम नबी लफ्ज़ बोलबे न करबे, हम बोलेंगे मर्द, और मर्द बगैर जिस्म के नहीं, कब्र में जो आया है वो मर्द है, इसका मतलब जिस्म और जान के साथ आया। अब वो लोग ये कहे लगे कि हाँ नहीं सरकार ही होते हैं, सरकार ही होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है सरकार ही होते हैं लेकिन आते नहीं है, सरकार की शबीह आ जाती है। शबीह फोटो फोटो हमें यार पूरी उम्मत का बना की न फोटो बिला वजह बिला जरूरत शरई
نہ کھینچواؤ. ہمیں روکی نا, اپنا بنائے کے سپلائی کریں گے. کیا کہتے سبحان اللہ. اور نمبر 2 رسول پاک کا نالین کیا کہتے تبرک ہے, سر پہ رکھو تاج ہے, شو آف ہولی پروفٹ, سر پہ رکھو کچھ کراؤن ہے, لیکن نبی نہیں ہے. رسول کی کالی کملی مل جائے تو معراج ہے, مگر وہ کملی, وہ چادر, وہ شال نبی نہیں ہے. نبی کا کرتا نبی نہیں ہے. نبی کی لنگی نبی نہیں ہے. نبی کا ڈریس تبرک ہے مگر نبی نہیں ہے. ورنہ کئی درجن نبی ہو جائیں گے. ٹوپی نبی, کرتا نبی, بنیان نبی, انڈرویئر نبی نہیں ہو گئے نا. نبی ایک ہے. یہ سب ان کے ملبوسات ہیں, تبرکات ہیں, ان کا ڈریس ہے. تو نبی کا کپڑا نبی نہیں ہے, تو نبی کا فوٹو بھی نبی نہیں ہے. ہمارا فوٹو 1000 ہے, تو کہا محدث اعظم کے 1000 بیٹے ہیں, تو فوٹو ہے, ہمیں یاد دلائے گا, ریمائنڈ کرے گا آپ کو, لیکن وہ ہاشمی نہیں ہے. ہمارے بچوں کا باپ نہیں ہے, ہماری بیوی کا ہسبینڈ نہیں ہو جائے گا ہر فوٹو. تو پھر نبی کا فوٹو اگر آپ کہتے ہو تو نبی کا فوٹو نبی نہیں ہو سکتا. اور مومن جواب کیا دیتا ہے قبر میں, حاضر نبی جو نا, کسی فوٹو کو وہ نبی نہیں کہہ سکتا جب تک ذات پاک مصطفیٰ خود نہ ہو. جواب سے ثابت ہوتا ہے حضرت نبی محمد رسول اللہ, یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اسی کو کہے گا, فوٹو کو نہیں کہے گا. ذات کو دیکھے گا تب بولے گا. کبھی ہاں دیکھتا تو ذات ہی کو ہے, مگر بہت بڑا مگر ان کی جمع ہے, مگر ماچی مگر. اب کا کاؤ مگر ہے, مگر حضور آتے نہیں. روٹرڈم میں قبرستان ہے, ہاں ہے. یہاں قبر بناتے ہیں, ہاں بنایا. مردے لٹائی دیا. حضور گنبد خضرا کے نیچے ہے اپنی قبر میں, ہاں. اور ای امتی ہے اپنی قبر میں. کھڑکی کھل جاتی, کھڑکیاں کھل جاتی, نبی کو دیکھ لیتا ہے. تو اصلی نبی کو دیکھا, حضرت نبی جو نہ بولا. اب روٹرڈم میں قبر ہے اور مدینے میں حضور کی قبر, کھڑکی کھلے. ابے کھڑکی ہوگی کہ سرنگ ہے؟ کہاں روٹرڈم اور کہاں مدینہ؟ اور بیچ میں پانی ہے, گناہی گھس جائے. قبر اتنی گہری تو ہوتی نہیں کہ سمندر کے نیچے ہو. کہیں ہاسمیہ سمجھو نہیں. نبی کی قبر اور روٹرڈم میں امتی کی قبر دور تو ہے, لیکن زمینیاں چپک جاتی ہیں, قبریاں سمٹ جاتی ہیں. تو جیسے نبی کی قبر اور امتی کی قبر سمٹ گئی نا, کھڑکی کھل گئی ہوئی, دیکھ لیا. ہم کہے کہ ہو کہا, زمین میں سمٹنے کی طاقت مان لیا, نبی میں آنے کی طاقت نہیں مان رہا ہے. لگتا ہے ہندوستانی نیتاؤں کی طرح یہ دھرتی پتر ہے. زمین میں طاقت ماننے میں شرک نہیں, اور نبی میں مان لو آنے کی طاقت تو شرک ہو جاتا ہے. یہ کیسے شرک فروش لوگ ہیں. اب ہم ایسا مثال گئی کہ کھڑکی تو کھڑکی, پورا دروازہ کھلے عقل کا. آج میرا نبی قبر میں, آج امتی بھی قبر میں ہے, تو قبر کو قبر سے سٹائی کے کھڑکی کھول رہے ہو. ہمیں بتاؤ کہ جب نبی زمین پر تھے تو صحابی کا انتقال ہوا. نبی کے سامنے صحابی کا انتقال ہوا. نبی نے نہلوایا, کفنوایا, جنازہ بڑھایا,
उठवाया, जन्नतुल बकी पहुंचाया, कब्र में उतरवाया, मट्टी दिया और नबी ने दुआ किया मगफिरत। सहाबा भी साथ में, सैकड़ों सहाबा साथ में हैं, सारे सहाबा जमीन पे, नबी जमीन पर और एक सहाबी कब्र में। नबी का फरमाया कि दुआ मांग के वापस निकले, अहले बैत वाली गली से निकले, जन्नतुल बकी से अहले बैत वाली गली पार, अब जो इन्होंने मिटा दिया, और सीधे बाबे जिब्रील या बाबुन्निसा की तरफ निकल गया रसूल सहाबा के साथ। जैसे ही बाहर निकले, फरिश्ता आया, सहाबी को कब्र में बिठाया, पूजा मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? रसूल अपने सहाबा को लेके गली में, स्टेज में, स्ट्रीट से जा रहे हैं। साहबी ने जवाब दिया, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। रसूल और आगे निकल गए अपने सहाबा को लेके। दीनों का तेरा दीन क्या है? रसूल और आगे जा चुके। दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। रसूल एकदम बाबे जिब्रील के बारे में गया, पूछा मैं कुंता तकुलो फी हादा रजुल, तो कब्र में सहाबी देख रहा है और जमीन के ऊपर सहाबा देख रहे हैं। मत के बारे में क्या कहा करते थे? तो कब्र, जन्नतुल बकी की कब्र में सहाबी देख रहा है कि मेरा नबी कब्र में। सिद्दीक अकबर देख रहे मेरे पास है, फारूक आजम देख रहे मेरे पास है, उस्मान गनी देख रहे मेरे पास है, अली मुर्तजा देख रहे मेरे पास है, हजरत साद देख रहे मेरे पास है, हजरत सईद देख रहे मेरे पास है, हजरत तलहा देख रहे मेरे पास है, हजरत जुबैर देख रहे मेरे पास है, अबू उबैदा बिन जर्राह देख रहे मेरे पास है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ देख रहे मेरे साथ। कब्र में भी नबी, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर भी नबी। अब कौन सी खिड़की खोलोगे? तो मान क्यों नहीं लेते कि खुदा ने अपने महबूब को वो कुव्वते कुदसिया अता की है कि हबीब जब चाहो जहां चाहो जा सकते हो। तो मेरे जिस पैगंबर को हौलैन की कब्र में आने से कोई नहीं रोक सका। क्या करें? भारत की धरती पे कब्र में आने से कोई नहीं रोक सका। हिंद महासागर की मौजें न रोक सकी, अटलांटिक ओशियन न रोक सका, बड़े से बड़े पहाड़ मेरे नबी को आने से नहीं रोक पाए। हर गरीब उम्मती की कब्र में रसूल आते हैं। तो जिस पैगंबर को रोटरडम की कब्र में आने से बड़ी ताकत न रोक सकी, उस नबी को अपने मिलाद में आने से कैसे रोकोगे? मजलिस में आने से कैसे रोकोगे? अपनी महफिल में आने से कैसे रोकोगे? देखिए, आज एक ऐसा सच बोल दूं जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं। ये जो हम लोग मिलाद में खड़े होते हैं, का रसूल आ गए हैं, का नबी तो है मिलाद की महफिल में आते हैं, तुम खड़े हो गए, गलत है ना। जब नहीं है तब काहे खड़े हो? कोई आवे ओके ताज़ीम में खड़े हो जाओ, नबी तो आएंगे। आते हैं क्या? हम जो उन बात कही थे, का नबी का देख के खड़े होते हो, ऐसी बात मत किया करो। हम कभी नहीं दावा किया कि हम नबी को देख के खड़े हुए। आज मैं सच्चाई उगल लूं, हम नबी को देख के मिलाद में नहीं खड़े होते। अभी खड़े होंगे ना तो देखते ना तो। एक वजह था, एक दिन ऐसा रहा कि हमने ये कहा कि आ सकते, हर मिलाद में नबी आते हैं, ये हमारा दावा नहीं है, झूठ ना बोल। हम तो वो नहीं कहे कि हर मिलाद में आते हैं, हम ही कहें कि आ सकते, कोई का बाप रोक नहीं सकता। उनकी मर्जी है। हमें कब्र में आते हैं कि रोक लीस, हमारे घर में के रोक लेगा, मगर मर्जी तो आका की है। हम फर्ज बिछाए हुए हैं,
लंगर बनाए हुए हैं, सबका खिलाए पिलाए रहे हैं, जो नबी को पसंद है वो सब कर रहे हैं, शायद आ जाए। क्या कहने सुभान अल्लाह। आ गए तो फजल होगा, नहीं आएंगे तो अदल होगा, हमारी तो लगी है अर्जी, काम करेगी उनकी मर्जी। अब आओ हमको का भेद बताइए। मिलाद हो रहा था, क्या मिलाद? मंजूम नजरान अकीदा शोराए कराम पेश कर रहे थे, मिलाद पढ़ रहे थे, सब बैठे। इतने में रूहानियत पाके मुस्तफा जलवागर हुई, नबी ने करम कर दिया, शरीके महफिल हो गए, सारे सुन्नी बैठे। नबी आ गए महफिल में, सारे सुन्नी बैठे। मगर वही मजमे में एक वली था। कौन था? वली। वली ने नबी को देख लिया। वली ने एक जुमले बता बच्चों, वली ने नबी को देख लिया। नबी को देख लिया, वली खड़ा हो गया। जब वली खड़ा हुआ तो सुन्नियों ने देखा वली खड़ा, सुन्नी खड़े हुए, तो नबी को देखकर वली खड़ा हुआ, वली को देखकर सुन्नी खड़े हुए। हमने वली को देखा खड़ा है, शाह वलीउल्लाह को देखा खड़े हैं, अब्दुल अजीज को देखा खड़े हैं, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को देखा खड़े हैं, मुजद्दिद अल-फैसानी को देखा खड़े हैं, हमें हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की तक को देखा कि खड़े हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत खड़े हैं, हम शबीह गौसे आजम सैयद अली हुसैन खड़े हैं, सुल्तानुल वाइजीन अहमद अशरफ खड़े हैं, सरकार कला मुख्तार अशरफ खड़े हैं, मुहद्दिस आजम हिंद खड़े हैं, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान खड़े हुए हैं, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान खड़े हुए हैं। अबे नबी को देखकर वो खड़े हुए, वली को खड़ा देखकर सुन्नी खड़ा हुआ। अभी बताओ क्या वली खड़े नहीं हुए? फैसले हफ्त मसला ही पर लो, तुम्हारे पीर साहब ने फैसला किया कि मैं क़याम ताज़ीमी करता हूँ, उन्हीं को देखकर खड़े हो जाते। अब फिर रिपीट करता हूँ तेजी से, मिलाद हो रहा था, नबी आ गए, सुन्नियों ने देखा नहीं, बैठे रहे, उसी में एक वली था, वली ने देखा नबी को तो वली खड़ा हो गया, और जब वली खड़ा हुआ तो सुन्नियों ने देखा वली खड़ा है, तो सारे सुन्नी वली के लिए खड़े हो गए। ये तो हमारे मिलाद में हुआ। मगर जिसके इज्तिमा में, तवज्जो, जिसके इज्तिमा में नबी जाता नहीं, वली होता नहीं, वो काहे को खड़े हो? जिस जलसे में नबी जाता नहीं, उस जलसे में वली होता नहीं, वो काहे को खड़े हो? किसको देख के खड़े हो? मगर एक आखिरी बात, या रसूलल्लाह, अगर आप मिलाद में कभी आते भी हैं, तशरीफ लाते भी हैं, तो दिखते क्यों नहीं? दिखाई पड़ जाए तो मजा आ जाए ना। आप आते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तुम दिखाई पड़ने से क्या फायदा होगा? अरे सरकार, जब आप लाखों आदमी के मजमे में दिखाई पड़ जाएंगे, सब मान लेंगे। अकल में क्या बात आई? या रसूलल्लाह, अगर आपको लोग देख लेंगे तो मानेंगे कि नहीं? भैया देखेंगे तो मानेंगे कि नहीं? क्या कहा था तो आप दिमाग मानिए कि नहीं? या रसूलल्लाह, आप दिख जाओ तो सब मानेंगे। तब तक रूह बोली चुप, बड़ी मंतिक लड़ा रहा है, बड़ा दिमाग लड़ा रहा है, बड़ा ब्रेन लड़ा रहा है, रियलिटी से मुंह फेर रहा है। तुमने क्या अगर इन देखने से मानेगा क्या? हमें कहा हाँ सरकार, अगर दिखाई पड़ेंगे तो क्या नहीं मानेंगे? कह रहे अगर देखने से मानना जरूरी होता, अबू जहल ने देखा कहाँ माना, अबू लहब ने देखा कहाँ माना, अतबा और शैबा ने देखा कहाँ माना? देखने से मानना जरूरी कहाँ है? अबे वो देख के नहीं माना, वो वैसे कमरी ने सुन के मान लिया। कभी अभी ये सवाल हटा नहीं कि रसूलल्लाह, हम मिलाद में दिखाई पड़ते क्यों नहीं? और कब्र में हर एक को दिखाई पड़ते हैं, कब्र में दिखाई पड़ते हैं, कब्र में, मिलाद में नहीं दिखाई। अगर तू समझाओ, इस्लाम बोला समझाओ, तो दोनों इम्तिहान है, दोनों तुम्हारे एग्जामिनेशन है, दोनों तुम्हारे यकीन का टेस्ट है।
टेस्ट मेक्स ए स्टूडेंट बेस्ट, नो बेस्ट विदाउट टेस्ट। इम्तिहान देगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा फर्स्ट डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, किसी फेल है। तो कब्र में दिखाई पड़ना इम्तिहान, और महफिल मिलाद में ना दिखाई पड़ना भी इम्तिहान। कब्र का इम्तिहान यह है, मैं दिखाई पड़ूंगा, दिखाई पड़ूंगा, देखो मती पहचानता है कि पहचानता है कि नहीं, पहचानता है कि नहीं। मैं दिखाई पड़ूंगा कब्र में, देखो मती पहचानता है कि नहीं। अब मिलाद में दिखाई नहीं पड़ूंगा, देखो मानता है कि नहीं। मिलाद में दिखाई नहीं पड़ूंगा, देखो मानता है कि नहीं। तो जो यहाँ मानता है वहाँ पहचानता है, जो यहाँ मानता नहीं वहाँ पहचानता नहीं। और जो कब्र के इम्तिहान में फेल हो गया, नबी करीम ने क्वेश्चन खोल दिया, इल्म गैब के फैजान से अपनी उम्मत को नवाजा, माजी हाल मुस्तकबिल सब बता डाला। अब भी फेल हो जाओ तो कितने बदनसीब स्टूडेंट हो। वाखिर दावाना